Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर हुआ? Yes, ma'am. तो हम लोग लास्ट दिन जो नया वेरिएंस पढ़े थे वो सेल्स रिलेटेड था। सेल्स का क्या क्या कैटेगरी होता है? सेल्स वैल्यू वेरिएंस होता है, एक मार्जिन टाइप होता है। तो वैल्यू में क्या क्या था? सेल्स वॉल्यूम और सेल्स प्राइस। और वॉल्यूम में दो रीजन था, सेल्स क्वांटिटी और सेल्स मिक्स। और इसको हम लोग को लिखना था 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, 1 - 3 और 1 - 4। मेटेरियल के जैसे ही है, ठीक है। तो ये है विथ रेफरेंस टू टर्नओवर जो होता है, टर्नओवर बेसिस पे किस किस रीजन से सेल जो है वो वेरी कर सकता है। तो अगर हम लोग सेल्स वैल्यू तभी वेरी करेगा अगर हम लोग का वॉल्यूम जो हम लोगों ने सोचा है उससे कम या ज्यादा हो, प्राइस यानी जिसमें हम लोगों ने सेल किया वो कम या ज्यादा हो, या फिर वॉल्यूम दो रीजन से हो सकता है, या तो क्वांटिटी या तो फिर मिक्स। और याद रखने के लिए ये 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 और 1 - 4। तो इसका रिलेटेड हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। और ये हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 तुम लोग करना स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग प्रिया। Good morning, ma'am. हम्म, প্রীতম, এটা যেটা হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ বলছি এটা স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং এ তুমি দেখেছিলে যেগুলো সেন্ড করেছিলাম দুটো? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম। দেখেছিলে ওই যে দুটো ভিডিও পাঠিয়েছিলাম, ওটা দেখেছিলে তো? আরে হ্যাঁ কি না বলো। আওয়াজ কেটে কেটে আসে। ও আচ্ছা, যাই হোক, ঠিক আছে করো এখন। বাকিগুলো পাঠিয়ে দেবো, তাহলে বুঝতে পারবে। তারপর যখন নতুন টপিক স্টার্ট হবে, আজ না হলে নেক্সট ক্লাস থেকে স্টার্ট হবে, তখন বুঝতে পেরে যাবে। ঠিক আছে, এখন যেরকম করাচ্ছে অন্তত করে নাও, যখন শুনবে তখন মানে রিলেট করতে পারবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে। হুম। তো আমি একটু বলে দিচ্ছি তোমাকে, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমরা ভেরিয়েন্সটা খুঁজছি। ভেরিয়েন্স মানে এই যে বাজেট, মানে আমরা কি মানে ভেবেছিলাম, এস্টিমেট কি করেছিলাম আর অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে। ঠিক আছে, সেলস এর ক্ষেত্রে। তো সেলস এর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল আর যেটা আমরা ভেবেছি সেটা ডিফারেন্স কি কি কারণে হতে পারে, এই যে আমি এখানে লিখেছিলাম কি কি কারণে হতে পারে, দেখিয়ে দিচ্ছি। এ দেখো, সেলস কোয়ান্টিটি আর সেলস মিক্স। হ্যাঁ এই যে আমি কোথায় যেন লিখলাম, হ্যাঁ এখানে। এ দেখো, ভ্যালু মানে, তো তোমার ভ্যালুটা মেন হচ্ছে, ভ্যালু চেঞ্জেসটা কেন হয়, তুমি কত টাকার সেল করবে ভেবেছিলে আর কত টাকার সেল হলো, এটা চেঞ্জেসের অনেকগুলো কারণে এই চেঞ্জেস গুলো হয়। ঠিক আছে, এবার তার মধ্যে যে কারণগুলো বলেছে আমি বলে দিচ্ছি, একটা মিনিট।
গুড মর্নিং বিশাল। সেলস ভ্যালু দেখো, এই যে ভলিউমের জন্য হয়, মানে তুমি যদি কোয়ান্টিটি তোমার কম বেশি হয়ে গেছে, তুমি যেটা ভেবেছিলে তার থেকে কম বেশি কোয়ান্টিটিতে যদি সেল করেছো, তাহলে সেলটা কি হয়ে যাবে? তুমি ভেবেছিলে 10 ইউনিট করবে কিন্তু করেছো 8 ইউনিট, তাহলে সেল ভ্যালুটাও তো কমে যাবে, কারণ ইউনিট ইন্টু তো ধরো 5 টাকা করে সেল করেছো, ঠিক আছে, ভেবেছিলে দশ হুম, 10 ইউনিট করবে তাহলে 50, কিন্তু হয়ে গেল 40। 40, ঠিক আছে। এই যেটা আমরা ভেবেছি, হ্যাঁ, তো এটাই হচ্ছে ভলিউমের উপর। প্রাইস মানে ধরো ভেবেছিলে 5 টাকা করে করবে 10 ইউনিট, কিন্তু করলে 10 ইউনিট করেছো, বা ধরো তার থেকে কম বা বেশি করেছো কিন্তু 4 টাকা করে, তাহলে কি হয়ে যাবে? প্রাইস চেঞ্জ হলেও টোটাল ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে? চেঞ্জ হয়ে যাবে। হুম হুম, এবারে কমে যাবে। ভলিউম যেটা আছে সেটা দুটো জিনিসকে চেঞ্জ হয়। এই যে কোয়ান্টিটি, ভলিউমটা যেটা কোয়ান্টিটিতে চেঞ্জ হয়, মানে কোয়ান্টিটি মানে ওই যে ইউনিটের কম বেশি যেটা হলো, আর মিক্স মানে ধরো 2-3 রকম প্রোডাক্ট বিক্রি করবে, এ বি সি, ভেবেছিলে এটা 10 ইউনিট করবে, বিটা 15, সিটা 20, কিন্তু ওটা পরে চেঞ্জ হয়ে গেছে। যদি মিক্সটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে মিক্সের জন্য, তাহলে এই দুটো জিনিস ইফেক্ট করে ভলিউমকে, আর ভলিউম আর প্রাইস মিলে ইফেক্ট করে ভ্যালুকে, ঠিক আছে। এবার এটা একটা ঠিক আছে। ট্রিক, মানে এটা মনে রাখার একটা সিস্টেম, ঠিক আছে, এইভাবে করতে হবে। তো তুমি আগের ক্লাসগুলো দেখলে একদম বুঝতে পেরে যাবে, এখানে বোঝার কোনো সেরকম সমস্যা হবে না, তুমি করতে থাকো তাহলে ঠিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে ম্যাম। হুম। अच्छा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, तुम लोग किए हो, क्वेश्चन कर रहे हो? हेलो, ये सिर्फ कैंसिल करना है मुझे, ये गलत दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1.9, ठीक है, ये 1.9 लेके करना है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स, बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2012 ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ए और बी 2 प्रोडक्ट है। ए का बजटेड सेल दिया हुआ है 6000 यूनिट हम लोग को सेल करना है, मतलब ऐसा बजट है, और ₹5 करके, और यहाँ पर 10,000 यूनिट ₹2 करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली ए जो है वो 2 अलग अलग क्वांटिटी में हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि 2 अलग सेल प्राइस है। ए को ₹5 पर यूनिट पे भी बेचा गया है, जो कि 5000 यूनिट के लिए है, और 4.75 जो है वो 1500 यूनिट के लिए है। और बी का भी 2 अलग अलग वॉल्यूम डिसाइड हुआ है, और 7500 यूनिट ₹2 पर यूनिट में सेल किया गया है, 1750 ₹1.9 करके सेल किया गया है। ये एक्चुअल है, एक्चुअल में लेकिन 2 तरह का प्राइस आ गया है, जबकि बजटेड में एक ही तरह के प्राइस से हम लोगों ने बजट किया था कि ए अगर बेचेंगे तो ₹5 करके, बी बेचेंगे तो ₹2, लेकिन एक्चुअली में ए को हम लोगों ने 5 एंड 4.75 पे सेल किया है, बी को 2 एंड 1.9 पे सेल किया, और क्वांटिटी भी अलग अलग है। बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी वेयर 4 एंड 1.50 यूनिट। तो बजटेड कॉस्ट जो है, कॉस्ट दिया हुआ है, ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट है, सेल मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये कॉस्ट प्राइस है 4 एंड 1.50। वर्कआउट फ्रॉम द अबव डेटा द फॉलोइंग वेरिएंसेस, हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वैल्यू वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, सब वॉल्यूम मतलब ही होता है, सब वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, क्वांटिटी, सब वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, और सेल्स मिक्स वेरिएंस। तो जैसे मैंने सीखा है उसी तरह से कॉलम करके तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या कॉलम करेंगे, देखो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या होना चाहिए था, और एक्चुअली में क्या हुआ है, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कॉलम, 4 कॉलम होगा, तो 1 2 3 4 जो है वो हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे। एकदम स्टार्टिंग वाले कॉलम में ये होता है, सेल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, और इधर लिखना पड़ेगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये हमेशा लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब एक्चुअल प्राइस सिर्फ एक ही जगह पे यूज होगा, बाकी हर जगह पे स्टैंडर्ड प्राइस यूज होगा, स्टैंडर्ड प्राइस, और यहाँ पर होगा एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पर होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस मतलब एक्चुअली में क्या हुआ है,
एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब यहाँ पर हम लोग का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा, और RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ मुझे क्या क्या है। 6,000 और 10,000। 6,000 और 10,000, तो 6,000 इंटू 5 और 10,000 इंटू 2। ये देखो स्टैंडर्ड मतलब ही बजटेड, तो ये गिवन है A B 6,000 इंटू 5 10,000 इंटू 2। अच्छा, नेक्स्ट AQ इंटू AP, तो AQ कितना है 5,000 इंटू कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 5 1,500 इंटू 4.75। ए का दो कॉलम होगा, मतलब ए के लिए दो डेटा, बी के लिए दो डेटा, तो इस तरह से हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो लिखो ए के लिए कितना लिखना पड़ेगा बताओ। ए के लिए लिखेंगे 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 5, और एक बार लिखना पड़ेगा 1,500 इंटू 4.75, 1,500 इंटू 4.75। ये ए के लिए कैलकुलेट होगा और बी के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे। ए के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, बताओ कितना हो रहा है दोनों को इंटू करने के बाद। 5,000 इंटू 5 25,000 और 6,750। 6,750, तो टोटल इसका कुछ होगा 25,000 प्लस 6,750 31,750। 31,750। और बी के लिए हो जाएगा 7,500 इंटू 2, और एक बार होगा 1,750 इंटू, वो मैंने ठीक करने बोला, वो 1.9 से होगा, वो गलत है। 7,500 इंटू 2 15,000, और হ্যালো দিদি, হ্যাঁ বলছি 1500 ইন্টু 4.75 তো 7125 আসছে, 6750 না তো? ও, তো আমাকে শিবম বললো, আমি তো লিখেছি, খেয়াল করিনি তো, তাহলে ভুল হয়ে গেছে ওর ক্যালকুলেশন। 1,500 इंटू 4.75 7125, हाँ 7125 7125, और 25,000 ये दोनों ए के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर 15,000 और 1,750 इंटू 1.9 3325 3325। कैलकुलेट करते जाओ तुम लोग। अच्छा, टोटल कितना हो रहा है देख लेते हैं। 25,000 प्लस 7,125 32,125, और ये 15,000 इंटू, सॉरी प्लस 3,325 18,325 18,325। अच्छा, उसके बाद ए क्यू इंटू एस पी, तो ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी तो ये सब है, ए क्यू इंटू एस पी करना हम लोगों को। तो एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा ए का जो है 5,000, और ये हो गया 1,500। इन दोनों को मार्च कर देंगे क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस तो एक ही है, तो 5,000 इंटू 1,500, तो 5,000 प्लस 1,500 हो गया 6,500, और स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो कितना है 5 है, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 5 32,500 32,500, और 7,500 इंटू
प्लस 1750, इसका क्वांटिटी है 9250, तो 9250 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 2, तो 9250 इंटू 2 18500, 18500, तो टोटल कर लो 18500 32,500, तो 51,000, ये आ गया 51,000 इसका टोटल। अच्छा, इसका भी टोटल कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 50,000, और इसका टोटल करेंगे ये पूरे का, तो यहाँ पर 32,125 और 18,325, 32,125 प्लस 18,325, तो ये हो गया 50,450, ये टोटल हो जाएगा ये वाला 50,000, यहाँ लिख देते हैं टोटल 50,450, ये जो है इसका पूरा टोटल होगा। और रिवाइज्ड इसमें RSQ मतलब क्या होता है, हमेशा जो हम लोग का एक्चुअल इनपुट है उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 6,500 और 9,250, तो टोटल हो गया 15,750, 15,750, ये एक्चुअल जो क्वांटिटी होगा इसके रेशियो में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक्चुअल रेशियो के हिसाब से, सॉरी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, यानी 6:10, ये 330 हटा दो, 6:2, क्योंकि हम लोग का A और B का रेशियो क्या है 6,000 10,000, हम लोगों ने सोचा था इस रेशियो में हम लोग जो है सेल करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 15,750 यूनिट का सेल किया है, जो कि 6,000 और 10,000 नहीं है, 6,500 और 9,250 है, इसका मतलब रेशियो चेंज हो गया है। तो हम लोग जो हम लोग का स्टैंडर्ड रेशियो उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से करते तो कितना होता, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:5, तो 15,750 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 into 3, 5,906.25, देखो 5,906.25, और यहाँ पर माइनस कर दो तो भी हो जाएगा 9,843.75, 9,843.75 इंटू 5 एंड इंटू 2 स्टैंडर्ड प्राइस, तो इंटू 2 19,687.5, 19,687.5 और 5,906.25 इंटू 5, 2,931.25, 2,931.25, दोनों का टोटल कर सकते हैं हम लोग 19,687.5, तो ये हो जाएगा 49218.75, ये कॉलम बन गया। अब बस हम लोग को रेशियोज बोल रहे, सॉरी, जो ये है वेरिएंस है वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस हिसाब से तो जो हम लोग का फॉर्मेट होता है उसी हिसाब से करेंगे। सेल्स वॉल्यूम जो होता है 1-4 होता है, तो सेल्स वॉल्यूम तुम लोग चाहो तो वो स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हो। 1 का टोटल कितना है 50,000, अलग अलग भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं A और B के लिए, और टोटल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम टोटल में ही दिखा देते फिलहाल। 1-4 यानी 50,000 माइनस 50,000 450, तो बताओ एडवर्स है या फिर फेवरेबल है, सेल है, ये सोच के बताओ फेवरेबल है या फिर एडवर्स है। फेवरेबल है। 450 फेवरेबल होगा, क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव आने से हम लोग एडवर्स बोलते हैं, लेकिन सेल्स वॉल्यूम हम लोग को लगा था 50,000, सॉरी वॉल्यूम नहीं, ये वैल्यू होगा। 1-4 मतलब वैल्यू होता है। हम लोगों को लगा था हम लोग 50,000 रुपीज का सेल कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने 50,450 का सेल किया है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, इसीलिए ये फेवरेबल होगा। इसके बाद सेल्स वॉल्यूम का क्या था, वॉल्यूम का था 1-2, तो 1-2 50,000 -2 मतलब है 4,921.75, माइनस करके बताओ कितना हो रहा है। $30,312.5। 303 781 ना, 781.25,
781.25। अब बताओ ये फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स है, क्योंकि हम लोगों को लगा था हम लोग 50,000 वॉल्यूम सेल कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने 49,218.75 का ही सिर्फ सेल कर पाए। अब सेल्स वॉल्यूम के बाद हो जाएगा सेल्स प्राइस। यहाँ लिख देते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस का क्या होता है, 3 - 4। तो 3 कितना है, 51,000, और 4 है 18,325। तो 51,000 माइनस 18,325, तो ये आ गया 5। ये माइनस गलत हो गया। अच्छा, ये 50,450, सॉरी मैंने एक टू ले लिया। ये पूरे कॉलम का जो टोटल है वो तो ये है ना 50,450, मैंने सिर्फ ये बी वाला लिख लिया 50,450। तो 51,000 माइनस 50,450, तो ये आ जाएगा 550। 550 ये भी एडवर्स है, क्योंकि हम लोगों को लगा था 51,000 होगा, लेकिन हुआ है 50,450। तो ये हो गया सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब निकालेंगे सेल्स क्वांटिटी एंड मिक्स। तो सेल्स क्वांटिटी एंड मिक्स, यहाँ पर रब करके लिखते हैं सेल्स क्वांटिटी एंड मिक्स। सेल्स क्वांटिटी और सेल्स मिक्स। क्वांटिटी का क्या होता है, क्वांटिटी का होता है 1 - 2। तो 1 में कितना है 50,000, और 2 में है 49,218.75, और मिक्स जो है उसमें होता है 2 - 3। तो 2 कितना है 49,218.75, और 3 है 51,000। तो माइनस करो। হ্যালো দিদি, হ্যাঁ বলছি ওই যে তুমি ভলিউম করেছিলে না, হ্যাঁ, ওইটা তো 50,000 মাইনাস 51,000 হবে না? ভলিউম যেটা, ভলিউম তো 1 - 3, তাহলে 50,000। হ্যাঁ, 50,000 মাইনাস 51,000। আমি কত লিখেছিলাম? ওই 49,218 লিখে দিয়েছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, তো ওটা ভুল হয়ে গেছে, এটা क्वांटिटी হবে। अच्छा, वॉल्यूम वाला सही कर लो, मैंने शायद 1 - 2 लिख दिया है, तो 1 - 3 होता है। जैसे होता है स्ट्रक्चर तुम लोग बना लो, हम ये एक्चुअली रब नहीं कर पा रहे, नहीं तो ये रब कर देने से सबसे अच्छा होता है कि जैसे मैंने सिखाया वो स्ट्रक्चर लाइन बाय लाइन लिखो और उसमें पुट करो तो ठीक रहेगा। तो वॉल्यूम को सही कर लो, वो गलत लिखा है मैंने। इसमें 51,000 के जगह कुछ और माइनस कर दिया था। हाँ, तो ये कितना होगा 50,000 माइनस 49,218.75, तो ये हो गया 781.25, और 49,218.75 माइनस 51,000, तो 1781.25। ये फेवरेबल है और ये एडवर्स है। ये हो गया। ये वाला हो गया। হ্যাঁ ম্যাম। और एक है सेल्स वेरिएंस, ये वाला तुम लोग करके मुझे बताओ क्या क्या होगा। तो हम लोग का सेल्स वेरिएंस का एक प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम लोग मार्जिन करेंगे जो लास्ट दिन नहीं किए थे, सेल्स मार्जिन वेरिएंस और वेरिएबल वाला। तो ये वाला देखो, ये वाला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स कैलकुलेट
क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है, सेल्स वैल्यू, प्राइस, वॉल्यूम, मिक्स, क्वांटिटी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो सेल्स सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, वैल्यू, सेल्स वैल्यू, उसका दो पार्ट करना है हम लोगों को। एक हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम, एक हो जाएगा सेल्स प्राइस। बिल्कुल मेटेरियल के तरह ही है, वैल्यू के जगह कॉस्ट होता है, मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल मतलब मेटेरियल क्वांटिटी और प्राइस हो जाता है। और वॉल्यूम का यहाँ पर दो रीजन होगा, सेल्स क्वांटिटी और सेल्स मिक्स वेरिएंस। तो इसमें 1 - 2 1 2 2 3, फिर 1 3 3 4 1 4, इसी तरह से याद रखना है तुम लोग को, ये ट्रिक है। 1 2 2 3 1 3 3 4 1 4। और क्या क्या कॉलम चाहिए इसके लिए हम लोगों को, एस क्यू इंटू एस पी, और इधर ए क्यू इंटू ए पी, और यहाँ पर हो जाएगा सारे जगह पे बाकी एस पी होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आर एस क्यू, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रेशियो चेंजेस के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी। जस्ट इसको फॉलो करना है। तो 1 2 3 4, अब इसको फटाफट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये देखो ये कॉलम तो पता ही है, स्टैंडर्ड वाला कॉलम एस क्यू, ये क्या है एस क्यू, ये क्या है एस आर या फिर एस पी, स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस, ये सारा इनटू करके जो आएगा वही फर्स्ट वाला कॉलम बन जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फोर्थ कॉलम का आंसर यहाँ पर आएगा, ये इनटू करोगे तो जो आएगा वही हो जाएगा फोर्थ कॉलम का आंसर। फर्स्ट और फोर्थ इस तरह से कर लो। फर्स्ट और फोर्थ कॉलम बनाओ। ये देखो इस तरह से होगा। कॉलम नंबर 1 जो है उसमें हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट या फिर प्राइस, प्राइस लिख सकते हो। तो ए बी सी, तो 5000 4000 और 3000, 5000 4000 3000 5 6 7, तो 5 6 7, तो इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 25,000 24,000 21,000। और 2 मतलब आर एस क्यू होता है, आर एस क्यू इंटू एस पी, और 3 मतलब हो जाएगा ए क्यू इंटू एस पी, सारे जगह पे एस पी और एस पी, ए क्यू, और ये फोर्थ वाला हो जाएगा ए क्यू इंटू ए पी। अब ए क्यू देख 6,000 5,000 4,000 6,000 5,000 4,000 इंटू और 658 था, रेट था 658 658, 36,000 25,000 32,000। और ए क्यू मतलब 6,000 5,000 4,000 6,000 5,000 4,000, और एस पी मतलब ये 5 6 7 5 6 7, 30,000 30,000 28,000। यहाँ एस पी मतलब 5 6 7। आर एस क्यू मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जो एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करो, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 15,000। अब ये 15,000 को हम लोगों को स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:4:3। तो बताओ कितना कितना होगा। 15,000 को अगर 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना होगा बताओ।
6250, 6250, 5000 or 3000? 5000 না 3000 তো নয়, ওটা একবার দেখো তো। 3750 हाँ 3750। कौन से रेशियो में किया हम लोगों ने? 543। स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है हम लोगों को, तो कितना कितना आ रहा है? सिक्स टू 50 इंटू 5, 31,250। 5000 इंटू 6, 30,000। 3750 इंटू 7, 26,250। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारा वेरिएंसेस। तो हम लोग इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंस जो होता है 1 - 4, ठीक है। हम लोग चाहे तो ये लास्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया था। ये देखो सेल्स वैल्यू वेरिएंस 1 - 4, तो 1 कौन सा है? ये वाला कॉलम है। तो हम लोग इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिविजुअली ही चेक करना चाहिए। तो 25,000 सोचा था और हुआ कितना? 36,000। तो फेवरेबल है। 25,000 माइनस 36,000 तो कितना हो जाएगा? 11,000 फेवरेबल। पहला वाला हो गया 11,000 फेवरेबल। इसी तरह से करना पड़ता है। 25,000 और ये 36,000, फिर 24,000। बी वाले प्रोडक्ट में क्या है? वैल्यू जो है 24,000 सोचा था, लेकिन हुआ 25,000। तो 1,000 क्या हो जाएगा? 1,000 फेवरेबल। और लास्ट में सी में देखो 21,000 हम लोगों ने सोचा था, लेकिन हुआ है 32,000। तो ये भी फेवरेबल। 11,000 फेवरेबल। तो तीनों ही फेवरेबल है। टोटल करो 22 एंड 23,000 फेवरेबल हो जाएगा। सेल्स वैल्यू हो जाएगा 23,000 फेवरेबल। उसके बाद प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सेल्स प्राइस वेरिएंस, या फिर वॉल्यूम भी कर सकते हैं। वॉल्यूम ही कर लेते। सेल्स प्राइस वेरिएंस ফেভারেবল। কিটা বলো আরেকবার। ভলিউমের অ্যানসারটা কি 18,000 ফেভারেবল? ভলিউমের অ্যান্সারটা 18,000 फेवरेबल, হ্যাঁ। अच्छा, अब सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सेल्स वॉल्यूम में क्या होता है? सेल्स वॉल्यूम मतलब होता है 3 - 1। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? 3 - 1। सेल्स वैल्यू, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स प्राइस। तो मिक्स और क्वांटिटी 1 2 2 3 1 3 3 4 1 2 2 3। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला रब कर देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वाला कैलकुलेट कर पाए। वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा 3 - 1 होता है इसमें। 3 माइनस, एक मिनट, वन माइनस 3। अच्छा, यहाँ पर देखो कितना था? 25,000 और 3 में कितना हुआ? 30,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5,000 फेवरेबल। और यहाँ पर 24,000 था, 30,000 हुआ, यानी 6,000
फेवरेबल, 21,000 था 28,000 हुआ, तो 7,000 फेवरेबल। तो सारा ऐड करो, 18,000 फेवरेबल। ये हो गया सेल्स वॉल्यूम। उसके बाद सेल्स प्राइस वेरिएंस जो कि होता है 3 - 4, तो 3 - 4 कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी सी, 3 - 4 तो 30,000 सोचा था, हुआ 36,000, तो 6,000 हो जाएगा फेवरेबल। 30,000 25,000, तो ये एडवर्स हो जाएगा 5,000। और 28,000 माइनस 32,000, 28 - 32, तो ये हो गया 4,000 फेवरेबल। तो 4,000 प्लस 6,000, दो फेवरेबल है, 10,000 और एडवर्स है मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,000 फेवरेबल। सेल्स प्राइस वेरिएंस जो आएगा वो आएगा 5,000 फेवरेबल। इसके बाद हेलो मिक्स, दीदी, হ্যাঁ বলছি বলো। কোয়ান্টিটি অ্যান্সারটা 17,500 ফেভারেবল। না, কোয়ান্টিটিটা 17,000 ফেভারেবল। 17,000 শুধু আর 17। মিক্সটা কত? 500 ফেভারেবল। হ্যাঁ, মিক্সটা 500 फेवरेबल। अच्छा, अब देखो प्राइस के बाद हम लोग कौन सा करेंगे, क्वांटिटी और मिक्स। तो क्वांटिटी वेरिएंस करते हैं, और क्वांटिटी का मतलब होता है 1 - 2। तो क्वांटिटी 1 - 2, तो 25,000 और 31,250, तो 25,000 माइनस 31,250 यानी 6,250, ये हो जाएगा फेवरेबल 24,000। और यहाँ 30,000 का हुआ, तो फिर ये हो जाएगा 6,000 फेवरेबल। और 21,000 माइनस 26,250, ये भी हो गया 5,250 फेवरेबल। तो 5,250, 6,250 एंड 6,000, तो 17,500। हाँ रोशनी ठीक ही আছে आंसर, 17,500 ही হবে। 17,500, হ্যাঁ এখানে ভুল দিয়েছে। 17,500 फेवरेबल। और लास्ट जो हम लोग को कैलकुलेट करना है वो है मिक्स। सेल्स मिक्स वेरिएंस, मिक्स का जो होता है वो 2 - 3 होता है। तो मिक्स वेरिएंस में 31,250 माइनस 30,000, तो कम हो गया है सेल, तो कितना हो जाएगा 1,250। तो ये हो गया एडवर्स। 30,000 नो इफेक्ट। और 26,250 और 28,000, 26,250 माइनस 28,000, तो ये हो जाएगा 1,750 फेवरेबल। और 1,250 एडवर्स, तो नेट इफेक्ट आ गया 500 फेवरेबल। नेक्स्ट ये लास्ट हो गया 500 फेवरेबल, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग मार्जिन का कर लेते हैं, सेल्स मार्जिन। ये वाला हो गया। Yes, ma'am. ओके, देखो मार्जिन, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। मार्जिन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। मार्जिन वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सेम उसी तरह से ही करेंगे। मार्जिन भी सेम रीजन से ही इफेक्टेड होगा, प्राइस के वजह से, मतलब रेट के वजह से, वॉल्यूम के वजह से, मिक्स के वजह से होगा। लेकिन इसे किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड हैड बजट द फॉलोइंग सेल्स। ये 800 यूनिट है और इसका जो प्राइस है ये बता के रखा है 800 यूनिट, और प्राइस बता के रखा है 100, 700 और 200। लेकिन हम लोग को प्राइस के साथ चेक नहीं करना, हम लोग को मार्जिन चेक करना है, यानी प्रॉफिट। ये तो सेलिंग प्राइस है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, इसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। उसके बाद एक्चुअल सेल्स दे दिया है 900, 800, और इसका कॉस्ट दे दिया है। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द, सॉरी ये कॉस्ट नहीं, ये सेल है, सेल। अच्छा, ये भी सेल दिया है, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट। तो ये हम लोग का बजटेड सेलिंग प्राइस है और ये हम लोगों का जो है एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। हम लोगों को लगा था कि ए 100 करके सेल करेंगे, 100 ही सेल हुआ है। बी हम लोग को लगा था 200 करके सेल करेंगे, लेकिन 180 पे सेल हुआ है। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, अब कॉस्ट क्यों दे दिया है इस तरह के सम्स में? इसीलिए दिया है क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। कॉस्ट दिया हुआ है, देखो आगे किसी सम्स में तुम लोग को कॉस्ट नहीं मिलेगा, मतलब कॉस्ट एंड सेल प्राइस नहीं मिलेगा। मेटेरियल लेबर करोगे तो सिर्फ कॉस्ट ही मिलेगा, ओवरहेड करोगे तो कॉस्ट मिलेगा, वेरिएबल करो फिक्स्ड करो। लेकिन जब सेल्स करोगे तो फिर मार्जिन वाला जो हो जाएगा सम्स, उसमें तुम लोग को ये कॉस्ट दिया हुआ रहेगा ताकि तुम लोग प्रॉफिट निकाल पाओ, क्योंकि हम लोग को सेल्स मार्जिन वेरिएंस कैलकुलेट करना है और मार्जिन का मतलब प्रॉफिट होता है। तो हम लोग का बजटेड प्रॉफिट क्या था और एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ? बजटेड प्रॉफिट क्या था? ए के लिए 100 माइनस 80, तो बजटेड प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 पर यूनिट। और 200 माइनस 170 तो कितना हो जाएगा? 200 माइनस 170 30 पर यूनिट। लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ? एक्चुअली में ए के लिए सेम हुआ है, लेकिन बी के लिए चेंज हो गया, 180 माइनस 170 रुपीज 10 पर यूनिट करके प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट का वेरिएंस हो गया, उससे हम लोग सेल्स मार्जिन वेरिएंस यानी प्रॉफिट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डिफरेंस वेरिएंस टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में जब ये वाला लाइन लिखा हुआ रहेगा ना प्रॉफिट, और उसके साथ ये दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये तो नहीं रहेगा, ये तो दिया हुआ है बिकॉज ये स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, ये नहीं रहेगा, ये एग्जाम टाइम मिसिंग रहेगा। तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे मेटेरियल पढ़ोगे समझ जाओगे, लेबर तो लेबर का ही डेटा रहेगा, मिक्स्ड अप डेटा रह सकता है मेटेरियल लेबर। ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड बता देगा। उसी तरह से सेल्स में ये जब दिया हुआ है प्रॉफिट का बात और उसके साथ कॉस्ट सेल दिया हुआ है, इसका मतलब मार्जिन वेरिएंस कैलकुलेट करने हम लोग को बोल रहा है। तो मार्जिन मतलब हम लोग को ये देखना है कि पर यूनिट में प्रॉफिट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। और इसका भी सेम उतने तरह से ही होगा। सेल्स पहले हो जाएगा सेल्स वैल्यू। वैल्यू दो रीजन से वेरी करेगा, वॉल्यूम और प्राइस। उसके बाद वॉल्यूम जो है मिक्स और क्वांटिटी। जैसे सेल का हम लोगों ने किया मतलब सेल्स का तो दो टाइप होता है ना, एक होता है मार्जिन टाइप और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो सेलिंग प्राइस बेसिस पे कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे मार्जिन बेसिस पे। तो मार्जिन का क्या क्या होता है देखो, इसको लिखवा देते हैं एक बार, फिर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेल्स मार्जिन, इसका भी सेम ही होगा, सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। इसका मार्जिन जो है दो रीजन से वेरी करेगा। सेल्स मार्जिन, हर जगह वॉल्यूम की जगह मार्जिन होगा, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। वैल्यू की जगह मार्जिन वाला लैंग्वेज यूज करेंगे, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम और सेल्स मार्जिन प्राइस। प्राइस की वजह से कितना मार्जिन में इफेक्ट आए यानी प्रॉफिट में, वॉल्यूम की वजह से कितना है। और वॉल्यूम का दो रीजन हो जाएगा, सेल्स मार्जिन मिक्स, सॉरी हाँ इधर मिक्स, और सेल्स मार्जिन अच्छा हम लोग तो इधर क्वांटिटी यूज करते हैं तो एक ही तरह से लिखते हैं, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। क्वांटिटी सेल्स मार्जिन मिक्स। तो 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 1 माइनस 3, 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 4। सेल्स मार्जिन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या फिर इसके बदले प्रॉफिट, एक ही बात है। सेल्स प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी, सेल्स प्रॉफिट मिक्स।
अब इसमें भी हम लोग सेम ही कॉलम प्रिपेयर करेंगे। यहीं पर करते हैं कॉलम 1 2 3 4। यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। इसमें लिखेंगे स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। यहाँ पर लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट, मार्जिन या प्रॉफिट। यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मार्जिन, सॉरी स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। और यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट। लैंग्वेज इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो कितना है। बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है। 800 और 700। अच्छा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दो प्रोडक्ट है ए बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800 और 700। और मार्जिन पर यूनिट स्टैंडर्ड के बेसिस पे कितना था और एक्चुअल के बेसिस पे कितना है। बताओ स्टैंडर्ड के बेसिस पे कितना था मार्जिन पर यूनिट। माइनस करके बताया मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट होता है ना, ये देखो। 20 और 30। हाँ ये बताया था, इसमें हो जाएगा 20 और उसमें हो गया 30, 20 एंड 30। तो 20 और 30 तो कितना हो रहा है 16,000 और ये कितना हो जाएगा 21,000। अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल मार्जिन बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी कितना हुआ 900 900 800। 800। और मार्जिन, ये एक मार्जिन तो दोनों केस में ही सेम है, बजट और एक्चुअल। सिर्फ बी का मार्जिन जो है वो चेंज होकर 10 हो गया है। 10। अब इसका वैल्यू, हाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 18,000 और ये हो गया 8,000। अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 900 अभी तो लिखा हम लोगों ने, और बी का कितना है 800 और स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट 20 30। तो 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 18,000 और ये कितना हो गया 24,000। और यहाँ पर फिर से 20 और यहाँ पर 30, लेकिन RSQ यानी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो टोटल एक्चुअल वाला करेंगे कितना हो जाएगा 17,000। अब 17,000 को हम लोग को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 8:7 में। तो बताओ 17,000 का 8:7 में डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना कितना आएगा 17,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8 तो हो जाएगा 906.66। इस तरह से आ रहा है तो 907 लिख देते हैं इंटू 20 तो कितना आ जाएगा 181,333 181,333। अच्छा, अब ये 1700 से माइनस कर देते हैं 907 तो एक्यूरेट आ जाएगा 793। 793 इंटू 30 तो 23,790। 23,790 आ गया 23,790।
अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक एक वेरिएंस। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स वैल्यू है। বলছি ওটা 907 into 20 করলে তো 18140 আসছে। 907 into 20 कर ले। হ্যাঁ 18140। Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, वो मैंने पूरा डेटा लेके कर दिया कैलकुलेटर में, इसीलिए अलग आ गया पॉइंट के चलते। 18140। अब ठीक है। अच्छा, अब सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वैल्यू ये होता है 1 - 4, एकदम जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू 1 - 4। तो ए और बी 16,000 का मार्जिन होगा, 16,000 का मार्जिन होगा ऐसा लगा था, लेकिन हुआ है 18,000। तो ये 18,000 है इधर। तो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? किस तरह से सोचोगे इसे, प्रॉफिट है या लॉस है बताओ। मतलब अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? 2,000 का जो डिफरेंस आ गया है वो फेवरेबल या अनफेवरेबल? ये तो मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग को, लगा था मार्जिन होगा 800 यूनिट बेचने पे 20 रुपए करके 16,000, जबकि मार्जिन मतलब प्रॉफिट हुआ है 18,000। तो क्या है मतलब फेवरेबल या फिर Favorable. फेवरेबल? 21,000 का मार्जिन होने वाला था, हुआ है सिर्फ और सिर्फ 8,000 का। तो क्या हो जाएगा ये वाला एडवर्स। कितना हो रहा है बताओ, 21,000 का मार्जिन होने वाला था लेकिन हुआ है यहाँ पर 8,000 है, तो -8,000, तो कितना हो जाएगा 13,000 एडवर्स। 13. हाँ, तो फिर यहाँ पर 13,000 एडवर्स और 2,000 फेवरेबल, तो हो गया 11,000 एडवर्स। फिर सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें कौन कौन सा माइनस होता है? इसमें हो जाएगा हम लोगों का (1 - 3). तो 16,000 - 18,140 -18,140, तो ये कितना हो जाएगा 2140। 2140 एक्स्ट्रा है फेवरेबल। बी, अच्छा 1 - 3 होगा ना, फिर से गलत कर दिया सॉरी। 1 - 3, 16,000 - 18,000, तो ये हो जाएगा 2,000 फेवरेबल, और 21,000 - 24,000 3,000 ये हो गया फेवरेबल। तो टोटल कितना हो जाएगा सेल्स मार्जिन जो है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 5,000 फेवरेबल, वॉल्यूम हो गया 5,000 फेवरेबल। अच्छा, नेक्स्ट प्राइस। प्राइस का क्या होता है, 3 - 4 होता है, 3 - 4। तो 18,000 - 18,000 नो इफेक्ट। अच्छा, 24,000 - 8,000, तो 24,000 - 8,000 16,000 ये हो जाएगा एडवर्स। तो ओवरऑल हो गया 16,000 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस जो है वो 16,000 एडवर्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे मार्जिन प्राइस। और कौन सा होता है बताओ, और क्या बाकी रह गया, मिक्स एंड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी लिख लेते हैं पहले। क्वांटिटी होता है 1 - 2, तो 16,000 - 18,140, तो 2140 फेवरेबल, और 21,000 - 23,790 2790, ये भी क्या हो जाएगा फेवरेबल। तो दोनों को ऐड करो, 4930 फेवरेबल, 4930 फेवरेबल, ये हो गया क्वांटिटी। और लास्ट मिक्स वेरिएंस। दीदी मिक्সের आंसर কি 70 ফেভারেবল? হ্যাঁ 70 फेवरेबल।
मिक्स मतलब हो जाएगा 2 माइनस 3, तो 18,140 माइनस 18,000 तो 140, और 23,790 माइनस 24,000 तो 210। तो ये देखो 18,140 होना चाहिए था, हुआ 18,000, ये एडवर्स और ये वाला एक्स्ट्रा हुआ है फेवरेबल। तो एडजस्ट करके आंसर जो है वो फेवरेबल ही आएगा, क्योंकि 210 ज्यादा है, 2 मतलब फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है, और ये एडजस्ट करके आ गया 70 फेवरेबल। तो ये था मिक्स। मतलब अगर कोई मेटेरियल को अच्छी तरह से समझ लोगे तो सेल्स वाला करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ लेबर में थोड़ा अलग कंसेप्ट हो जाता है, और फिक्स्ड वाला जो होता है फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये हो गया। हेलो। Yes. अच्छा, ये अब हम लोग करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल फिक्स तो मैंने सिखाया था, वेरिएबल ओवरहेड उस दिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया था क्वेश्चन से। ये उतना ज्यादा नहीं रहता है, एक क्वेश्चन मुझे मिला है, ये करते हैं हम लोग। वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, इसका दो रीजन होता है। एक वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब हम लोगों ने कितना खर्चा करना चाहा और कितना हुआ। एफिशिएंसी मतलब कितने जल्दी, कितने कम समय में कितना एफिशिएंटली काम को किया। एफिशिएंसी तभी होता है जो टारगेट टाइम होता है उससे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा जल्दी, मतलब कम टाइम में अगर हम लोग कर ले, या फिर जो टारगेट ऑफ क्वांटिटी है उससे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर ले कम टाइम में, तो उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। और इन दोनों के वजह से हम लोग का जो कॉस्ट है वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता करना चाहिए? यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि स्टैंडर्ड रेट क्या है। स्टैंडर्ड रेट के ऊपर डिपेंड करके ही इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट पता होना जरूरी होता है। तो ये लिख लो तुम लोग, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड में। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो रेट होगा, रिकवर्ड जो रेट होगा, बजटेड रिकवर्ड रेट, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बजटेड रिकवर रेट कितना होगा? वेरिएबल ओवरहेड बजटेड कितना है? 10,000 और प्रोडक्शन यूनिट है 400, लेकिन अगर हम लोग आवरली बेसिस पे करते हैं तो ये है 8,000। तो एक बार डिवाइड करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। 10,000 divided by 8,000, 1.25. 1.25. हाँ 1.25 budgeted recovery rate, budgeted variable overhead divided by budgeted hours। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना हो जाएगा? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 10,000, और बजटेड आवर्स जो है वो है 8,000। तो ₹1.25, क्योंकि हम लोगों ने आवर से डिवाइड किया है तो ₹1.25 पर क्या हो जाएगा? आवर। ₹1.25 पर आवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ के करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ट्रिक उतना नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग को बस दो ही वेरिएंस कैलकुलेट करना है और उसी का इफेक्ट है वो कॉस्ट पे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले बजटेड ये वाला कैलकुलेट कर लो, बजटेड रिकवरी रेट।
अच्छा ये हो गया होगा। वेरिएबल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है हम लोगों को कितना खर्चा करना चाहिए था और हम लोगों ने कितना खर्चा किया। हम लोगों ने कितना खर्चा किया वो तो हम लोग को पता है, कितना खर्चा किया है 9150, ठीक है। लेकिन हम लोग का कितना खर्चा होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो ये जो बजट है ये 400 यूनिट का बना हुआ है, जबकि एक्चुअल कितना है 360 यूनिट का बना हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में ट्रांसफर करना पड़ेगा कि 400 के लिए खर्चा अगर 10,000 है तो फिर 360 के लिए कितना होगा। वैसे तो हम लोगों ने रिकवरी रेट निकाल ही लिया है, स्टैंडर्ड का रिकवरी रेट कितना है 1.25, लेकिन ये आवरली बेसिस पे आया है, यूनिट बेसिस पे नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पर रिकवरी रेट तो कुछ और होगा, बिकॉज ये 7,000 मैन आवर्स काम हुआ है, 9150 डिवाइडेड बाई 7,000 करोगे तो 1.30 ऐसा कुछ आ रहा है, ये रिकवरी रेट है। लेकिन स्टैंडर्ड का है 1.25। तो बात ये है कि अगर हम लोग 400 यूनिट प्रोडक्शन करने पे 8,000 मैन आवर्स लगता है तो 360 यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना टाइम लगेगा, ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ। बताओ, नहीं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिकवरी रेट जो है वो 1.25 पर आवर है बजट के हिसाब से, तो बजटेड रिकवरी रेट है 1.25। तो अगर 400 यूनिट प्रोडक्शन करने पे 8,000 टाइम लगता है तो 360 के लिए कितना लगेगा, 8,000 डिवाइडेड बाई 7200। 7200। तो 7200 और रिकवरी रेट कितना है 1.25। रिकवरी रेट कितना है 1.25। तो हम लोग रिकवरी रेट इस पे लगाओ तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट पता चल जाएगा, बजटेड कॉस्ट। यहाँ पर हम कर देते हैं इसका कैलकुलेशन जो था, इसको इस तरह से लिखेंगे। स्टैंडर्ड या फिर बजटेड लिख सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। पहले समझ लो फिर बता देंगे, शॉर्टकट भी हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 360 तो कितना हो जाएगा 7,200 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से 360 यूनिट प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगना चाहिए, 7,200 आवर्स टाइम हम लोग को लगना चाहिए, ठीक है। और फिर तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो हो जाएगा 7,200 आवर्स लगना चाहिए 360 यूनिट बनाने के लिए, और रिकवरी रेट आया 1.25। तो 7,200 इंटू 1.25 करो तो कितना आ जाएगा 9,000। और हम लोगों का जो वेरिएबल ओवरहेड है मतलब स्टैंडर्ड ओवरहेड, इसको ओवरहेड लिखते हैं, कॉस्ट तो नहीं होगा ओवरहेड। स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा 9,000 और जो एक्चुअल ओवरहेड है वो कितना है 9150। तो कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इस तरह से हो जाएगा 9,000 माइनस 9150 तो कितना 150 एडवर्ड्स, ठीक है। ये समझ लो, फिर हम ट्रिक भी बता देंगे। यहाँ पर ये हो गया कि स्टैंडर्ड आउटपुट हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि एक्चुअल जो है ये 360 का बना हुआ है, तो बजट को हम लोगों ने इसके साथ ऐड पर कर लिया बजट बेसिस पे। अगर बजट हमारा 360 का ही होता तो हम लोगों को टाइम लग जाता 7,200 यूनिट। तो फिर हम लोग का 1.25, यहाँ पर जो रिकवरी रेट 1.25 है उसके बेसिस पे हम लोग का खर्चा हो जाता 9,000। तो देखो ये कॉलम चेंज होके ये बन गया। अगर हम लोग बजट 360 का ही बनाते तो बजट के हिसाब से ही टाइम लगता 7,200 और बजटेड रिकवरी रेट के हिसाब से हम लोग का खर्चा हो जाता 9,000, जबकि खर्चा हुआ है 9150। तो डिफरेंस कितना हो गया 150 का, तो 150 एडवर्स। अब हम लोग निकालेंगे एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो टाइम के बेसिस पे होता है, तो एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखो कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना लगा है।
एफिशिएंसी देखो ये कॉलम देखोगे तो 360 यूनिट बनाने में टाइम लगना चाहिए, हम लोग को लगा था 7200, लेकिन हम लोगों ने 7000 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया, तो 200 आवर्स बचा लिया हम लोगों ने। और रिकवरी रेट कितना है 1.25, तो 200 इंटू 1.25 तो 250 क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। ये देखो इस तरह से एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा टाइम के ऊपर होता है। 360 यूनिट बनाने में बजट के हिसाब से लगना चाहिए 7200 आवर, लेकिन लगा कितना 7000 आवर्स, और हमेशा बजटेड से ही कैलकुलेट होता है। एक्चुअल प्राइस जो होता है या फिर रेट जो भी वो एक ही बार कैलकुलेट होता है एक्चुअल के साथ एक्चुअल। तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 1.25 तो कितना आ जाएगा 250 क्या हो गया फेवरेबल। और लास्ट जो है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब हम लोगों ने कितना खर्चा किया है और कितना खर्चा होना चाहिए था। तो एक्सपेंडिचर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग का खर्चा तो 9150 हुआ है, वो तो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन हम लोग का होना कितना चाहिए था वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो 7000 आवर जो है 7000 आवर खर्चा टाइम खर्चा एक्चुअली में हुआ है, लेकिन बजट के हिसाब से कितना था 8000। अब हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर मतलब कितना पेड करना था, तो पेड क्या था 8000 आवर्स काम होने पे 10000 खर्चा करना था। 8000 आवर्स काम होने पे अगर 10000 रुपीज खर्चा करना पड़ता तो 1 आवर के लिए कितना बजट के हिसाब से 10000 डिवाइडेड बाई 8000, इससे हम लोग को रिकवरी रेट मिला है। और हम लोगों ने एक्चुअली कितना घंटा काम करवाया है, एक्चुअली हम लोगों ने 7000 आवर्स काम करवाया है। तो अगर टाइम के हिसाब से देखें तो 7000 इंटू 1.25 कर दो, एक ही बात है, तो कितना आ जाएगा 8750। हम लोगों को लगा था कि रिकवरी रेट अगर 1.25 रहेगा, तो रिकवरी रेट हम लोग का लगा था 1.25, और अगर हम लोगों ने एक्चुअली 7000 आवर्स काम करवाया तो 1.25 के बेसिस पे हम लोग को कितना पैसा खर्चा होना चाहिए था 8750, लेकिन हम लोग का खर्चा कितना हुआ 9150, तो 400 ये हो गया एडवर्स। तो देखो कॉस्ट इसका दो पार्ट, एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर, और ये एफिशिएंसी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितना आ गया 250 फेवरेबल, और ये कितना आ गया 400 एडवर्स। तो दोनों को एडजस्ट कर दो, 400 माइनस 250 तो ये हो जाएगा 150 एडवर्स। तो यही हम लोग का आंसर आया था 150 एडवर्स आया था। अब इसको अगर याद रखने के लिए किस तरह से कर सकते हो, देखो इसमें हम लोग को मेनली क्या क्या कॉलम करना पड़ेगा। किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड, और यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। ये हर जगह तो एक ही रहता है, बस रेट प्राइस क्वांटिटी टाइम इस बेसिस पे चेंज होगा। तो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्चुअल आवर रहेगा और स्टैंडर्ड रेट रहेगा। वही 1 2 3 उसी तरह से कॉलम के बेसिस पे, यहाँ पर सिर्फ 2 वाला मिसिंग रहेगा, ठीक है 1 3 4 इस तरह से। तो ये ही हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड रेट कितना आया था 1.25, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1.25, और एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर कितना है एक्चुअल आवर है 7000, और इसका कुछ पॉइंट आ जाएगा ये देखो, और ये कितना है एक्चुअल 9150, तो 9150 डिवाइडेड बाय 7000 करोगे तो 1.3 इस तरह से अप्रोक्स आ रहा है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, इस कॉलम का आंसर होगा 9150, और एक्चुअल आवर कितना है 7000 इंटू 1.25 तो कितना हो जाएगा 8750, और स्टैंडर्ड आवर कितना है स्टैंडर्ड आवर है 8000, तो 8000 इंटू 1.25 तो हो जाएगा, अच्छा ये स्टैंडर्ड आवर जो है ये 8000 नहीं लिख सकते, बिकॉज ये जो है ये 400 यूनिट के लिए है, तो हम लोग को रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, बिकॉज ये जो है ये 400 यूनिट के लिए, और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हम लोग का आया था 7200, यहाँ पर आया था। ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर ले लो अगर यूनिट दोनों सेम नहीं है, तो ये आया था 7200।
तो यहाँ पर हो जाएगा 9000। अब कॉस्ट के लिए कौन सा माइनस होगा, ये लो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, और इसका दो पार्ट हो जाएगा। कॉस्ट हमेशा यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3, और यहाँ पर करेंगे वेरिएबल एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर। एफिशिएंसी हो जाएगा 1 - 2, ये 2 और इसे 3, 1 - 2, 2 - 3 और 1 - 3, इस तरह से याद रखो। कॉस्ट एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर, 1 - 2, 1 - 2 - 3, 1 - 3, 1 - 2 करो, 1 - 2 करने से कितना आएगा, -8750। यहाँ पर आ गया 250, यहाँ पर आ गया 250। 2 - 3 करो, 8750 - 9150, तो यहाँ पर आ गया 400। ये एडवर्स हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है फेवरेबल, और 1 - 3 कर दो तो 150 हो गया एडवर्स। कंसेप्ट यही है कि हम लोग को दो, जैसे पहले दिन मैंने मटेरियल का कंसेप्ट बोला था, उसी तरह से हम लोग को स्टैंडर्ड जो रिकवरी रेट है, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट है, वो हम लोग को चेक कर लेना है। ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर होगा, सॉरी ये नहीं, तो ये स्टैंडर्ड रेट हम लोग कैलकुलेट कर लिए, जो कि है 1.25, और हम लोग को क्या करना है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली हुआ है 9150, और ये कैसे आया है 7000, और इसका कुछ अप्रॉक्स आ रहा है, तो ये कॉलम जो है 9150 लिखना सही रहेगा डायरेक्टली, बिकॉज ये जो है ये पॉइंट जो आएगा, इसको बहुत सारा पॉइंट आ रहा है, उसे लिखेंगे तो शायद 9150 ना भी आए, ये अप्रॉक्स होगा, ठीक है, 9150। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली आवर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है 7000, और हम लोगों का जो अगर रिकवरी रेट 1.25 ही रहता तो कितना हो जाता। तो जैसे ही हम लोगों ने 1 - 2 किया, तो इसमें हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने कितने टाइम पे, ये देखो यहाँ पर 7200 और यहाँ पर 7000, यानी हम लोगों ने 200 आवर्स कम यूज किया है, बिकॉज जो स्टैंडर्ड है उस बेसिस पे 7200, जबकि एक्चुअल बेसिस पे 7200, और ये 1.25, तो दोनों केस में ही सेम है। तो ये जो है 9000 - 8750, यानी 1 - 2 हम लोग को एफिशिएंसी बताता है। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब ये होता है कि एक्चुअली हम लोगों ने कितना टाइम लगाया है 360 यूनिट के लिए, और अकॉर्डिंग टू बजट 360 नॉट 400, 360 यूनिट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था 7200, और हम लोग का रिकवरी रेट तब कांस्टेंट रहेगा, तो 1.25, तो इसके बेसिस में 250 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग एक्सपेंडिचर देखें, तो एक्सपेंडिचर ये देखो, एक्सपेंडिचर मतलब 2 - 3, 2 - 3 कर रहे, तो हम लोगों ने 7000 घंटा काम किया, जो कॉमन है, लेकिन हम लोग को लगा था कि हम लोग का रेट 1.25 होगा, जबकि रेट चेंज होकर 1.3 समथिंग कुछ हो गया, यानी ये एडवर्स सिचुएशन है। और कॉस्ट मतलब क्या होगा, हम लोग को लगा था 1.25 इंटू 7200 बेसिस पे करेंगे तो 400 यूनिट का कॉस्ट पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग को 1.3 समथिंग पर आवर्स बेसिस एंड 7000 आवर बेसिस पे हम लोग को 9150 का कॉस्ट आ गया, तो 150 एडवर्स सिचुएशन होगा। तो वेरिएबल को हम लोग को इस तरह से करना है। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो लगभग सारा ही सेम ही तरह से करना पड़ता है, सिर्फ सबका अलग अलग कंसेप्ट है। सिर्फ फिक्स्ड वाला जो है उसको थोड़ा अलग तरह से समझना पड़ता है, बाकी मेटेरियल, लेबर, सेल्स सभी एक ही जैसा ही होता है। तो ये हो गया है। यस मैम। अच्छा, तो ये अगर हो गया है तो लास्ट दिन जो हमारा क्वेश्चन था वेरिएबल वाला, वो मुझे तुम लोग बताओ कि क्या होगा आंसर। इसके नीचे ही हम लिख रहे हैं बजट और एक्चुअल, ये वाला क्वेश्चन का वेरिएबल वाला आंसर मुझे बताओ। आउटपुट 30,000 यूनिट और 32,500, आवर्स 30,000 और 33,000, इसका हम लोगों ने लास्ट दिन फिक्स्ड वाला कैलकुलेट किया था। और वेरिएबल ओवरहेड 60,000 और 68,000। तो इससे तुम लोग मुझे वेरिएबल ओवरहेड, कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड, और ये वाला क्वेश्चन ये तो मैंने बता दिया, कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड
तुम लोग मुझे बताओ क्या क्या होगा आंसर। कैसे करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड रिकवरी रेट इन द टर्म्स ऑफ आवर निकाल लो और जैसे मैंने कॉलम बताया वैसे लिखो तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसका जो 3000 एडवर्स आया था वही वाला है ना ये क्वेश्चन हाँ हाँ वेरिएबल में। हाँ हाँ, लेकिन उसका बाकी दो नहीं करवाया था मैंने, एक एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर। कॉलम बना लो, इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर मतलब यहाँ पर अगर रिवाइज्ड वाला होगा तो वही लगाना पड़ेगा। ये देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, एकदम लास्ट में। यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, अगर रिवाइज्ड होगा तो रिवाइज्ड, यहाँ पर हमेशा एक्चुअल बेसिस पे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रिकवरी मतलब बजटेड रिकवरी रेट निकालना चाहिए। बताओ बजटेड रिकवरी रेट क्या होगा। बजटेड रिकवरी रेट तो कितना खर्चा हुआ है, ये रुपीज में है, ये आवर में है। 60,000 2 रुपीज रुपए। का, हाँ 2 रुपीज 30,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ₹2 पर आवर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट 2 है, स्टैंडर्ड रेट 2 है, मिल गया। और एक्चुअल रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। 68,000 डिवाइडेड बाय 33, देखो कुछ अप्रोक्सीमेशन आ रहा है या फिर डायरेक्ट हो जा रहा है। इसमें अप्रोक्सीमेशन आ रहा है 2.0606060 इस तरह से आ रहा है। इंटू 33,000 करोगे तो वो 679, ये 68,000 कॉलम को हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि एक्चुअल आवर तो हम लोग को पता है, एक्चुअल आवर 33,000 है और जो रेट है वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। मतलब 68,000 डिवाइडेड बाय 33 करोगे ना, जैसे इसमें डिवाइड करने पे प्रॉपर एक वैल्यू आया, इस पे नहीं आएगा, पॉइंट पे आएगा। तो पॉइंट पे आने से 68,000 डिवाइडेड बाय 33,000 यानी 2.06 इस तरह से आ रहा है अप्रोक्स, 2.06 इस तरह से अप्रोक्स यानी 68,000। अच्छा अब एक्चुअल आवर कितना है 33,000, तो 33,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 66,000। यहाँ पर हो गया 66,000। अब स्टैंडर्ड आवर कैलकुलेट करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये 30,000 यूनिट के लिए बना हुआ है, ये 32,500 यूनिट के लिए बना हुआ है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बताओ कि 30,000 यूनिट के लिए अगर 30,000 आवर्स लग रहा है, यानी पर यूनिट के लिए अगर 1 आवर करके लग रहा है, तो 32,500 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा। 30,000 यूनिट के लिए 30,000 आवर्स टाइम लग रहा है, यानी पर यूनिट के लिए 1 आवर लग रहा है, तो 32,500 के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ। ये तो उस दिन फिक्स्ड में भी काम में आया था। 32,500 ही होगा ना। 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 32,500 तो कितना हो जाएगा 32,500। तो 32,500 इंटू 2 65,000, ये हो गया 65,000। अब आंसर कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा ये 1 माइनस 3, ये वाला 1 माइनस 3, 65,000 माइनस 68,000 कॉस्ट वेरिएंस। ये और ये माइनस होगा तो हो जाएगा कॉस्ट वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब टाइम, ये देखो टाइम यहाँ पर देख के पता चलेगा। ये 33,000 है, यहाँ पर 32,500 है, तो ये टाइम स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम, यानी टाइम के लिए ये एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। और एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग को लगा था कि 33,000 आवर काम होने पे 66,000 खर्चा हो सकता है, लेकिन हुआ 68,000। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाएगा 2,000 एडवर्स, ये हो गया 3,000 एडवर्स, और ये हो गया एफिशिएंसी 33,000 ज्यादा, मतलब एफिशिएंसी अच्छा है, यानी ये कितना हो जाएगा 3,000 सॉरी 1,000
65 माइनस 66, 1000 एडवर्स। हम लोगों ने 32,500 का काम, आवर्स का काम 33,000 आवर्स में किया है, तो ज्यादा टाइम लगा है, तो 1000 क्या हो जाएगा एडवर्स। तो इस तरह से कैलकुलेट होगा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। हो गया ये वाला? हेलो, है मैम। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। आज हम लोग थोड़ा नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका इंट्रो थोड़ा पढ़ लेते हैं और उस पे एक दो सम्स कर लेते हैं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो बजट क्या होता है? बजट होता है एक एस्टिमेशन, जो एक पेपर वर्क होता है, ठीक है। बजट एक एस्टिमेशन होता है जो पेपर वर्क होता है, जिसमें रियलिटी के साथ कुछ मतलब रियलिटी के साथ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग जो एस्टिमेशन करेंगे रियल में उतना ही होगा या फिर वैसा ही होगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते। बजट एक एस्टिमेशन है, एक प्लान हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एक प्लान बोल सकते हैं, जिस प्लान को हम लोग को किस तरह से बताना है, इसको हम लोग को जो प्लान ऐसे एक्सप्रेस्ड करना पड़ेगा मॉनिटरी टर्म में, एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म। और जो टारगेट रहेगा, मतलब एक एस्टिमेशन प्लान या फिर टारगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो टारगेट हम लोग को अचीव करना है, तो कितना टारगेट अचीव करना है, तो इसको हम लोग मॉनिटरी टर्म एज वेल एज क्वांटिटेटिव टर्म में हम लोग इसे क्वांटिटेटिव टर्म में हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बजट हम लोग का क्या है? एक टारगेट है जिसे हम लोग अचीव करना चाहते हैं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारा एक एस्टिमेशन या प्लान होना चाहिए, लेकिन ये एस्टिमेशन या प्लान जो भी है, इसे हम लोग को एक्सप्रेस करना पड़ेगा मॉनिटरी टर्म में। जैसे तुम लोग बोलोगे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट करना है, तो ये कुछ मतलब एस्टिमेशन तो लगा रहे हो कि अच्छा रिजल्ट करना है, लेकिन तुम लोग को बताना पड़ेगा तुम लोग के लिए अच्छा क्या है। मतलब पास करने के लिए 50% चाहिए तो 50%, 90%, ये जब परसेंटेज या फिर जो वैल्यू में बोल सकते हो कि मुझे 200 चाहिए या फिर हम मुझे 300 मार्क्स चाहिए, तो ये जब हम लोग बता रहे हैं तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? एक क्वांटिटेटिव टर्म में बता रहे हैं। और अगर हम लोग बिजनेस के रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो मुझे 50% प्रॉफिट करना है, 90% करना है, या फिर कितने रुपीस का करना है पर यूनिट पे। तो बजट मतलब एक प्रोजेक्शन होता है, एक एस्टिमेशन होता है, जिसे अचीव करने के लिए हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान को हम लोग को मॉनिटरी वैल्यू एंड क्वांटिटेटिव वैल्यू, मतलब कितना क्वांटिटी में करना है हम लोगों को, वो मतलब सेल। और क्योंकि प्रॉफिट अगर हम लोग को चाहिए, बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग को सबसे पहले टारगेट जो मतलब सोच लेना चाहिए, दैट इज सेल क्वांटिटी। हम लोग को कितना सेल करना है, क्वांटिटी एंड एज वेल एज वैल्यू। क्वांटिटी और उसके साथ कितने रेट पे करेंगे तो हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट अचीव करना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होता है। और उसके लिए सबसे पहले अगर बजट प्रिपेयर करना है तो तुम्हें सेल बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम कितना यूनिट सेल करना चाहते हैं, बिकॉज जितना सेल करना चाहेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करके मुझे मेटेरियल को परचेस करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? मेटेरियल परचेस बजट। इस तरह से हर एक अलग अलग बजट बनता है। जैसे
सेल्स का जब हम लोग सोचेंगे कि कितना यूनिट सेल करना है, तो ये फर्स्ट बजट होता है। सेल्स बजट हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट बजट होता है, और इसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बाकी सारा बजट बनाते हैं। अगर सेल हम लोग सोच लेंगे तो हम लोग ये पता कर लेंगे कितना हम लोगों को मतलब प्रोडक्शन करना है। सेल्स अगर हम लोग सोच लेंगे, देखो सेल्स अगर हम लोग सोच लेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा तो हम लोग को कितना प्रोडक्शन करना है, उस बेसिस पे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। और प्रोडक्शन का अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्शन अगर पता चल जाएगा तो हम लोग मटेरियल परचेस करेंगे, लेबर का बजट बना सकते हैं कि लेबर पेमेंट जो होगा वो, या फिर अदर एक्सपेंस जो होगा उसका बजट बना सकते हैं। और जैसे ही मटेरियल परचेस बजट बन जाएगा, अब ये सब जो बजट होगा ये सेल्स बजट हो जाएगा, प्रोडक्शन बजट में ये सब आ जाएगा। ये सब के लिए हम लोग कौन सा बजट फॉलो करेंगे, कैश, क्योंकि मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर को पेमेंट करने के लिए, या फिर अदर एक्सपेंस जो भी है उसे हम लोग को इन मतलब अदर एक्सपेंस पे करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कैश। तो कैश मेंटेन करने के लिए हम लोग कौन सा बजट बनाएंगे, कैश बजट बनाएंगे, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। और ये सारा बजट को मिला के हम लोग बोलते हैं कि मास्टर बजट। ये सारा बजट जब हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग इसे बोलते हैं मास्टर बजट। और ये जैसे है सेल्स बजट, सेल्स टारगेट क्या है पता करने के लिए सेल्स बजट बनाएंगे, और सेल्स बजट को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोडक्शन बजट भी होना चाहिए। और प्रोडक्शन जो है उसके लिए तीन चीज मेन होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड या फिर अदर एक्सपेंस बोल सकते हो। तो ये जो है ये प्रोडक्शन बजट का हिस्सा हो जाएगा। और ये सब के लिए हम लोग को जो पैसा चाहिए उसे हम लोग उसके लिए कैश बजट हम लोग मेंटेन करेंगे। और ये सारा मिला के हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल बजट, मास्टर बजट ये पूरा मिला के। लेकिन ये सब जब हम लोग एक साथ करते रहेंगे कि हम लोग सेल्स बजट भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन बजट भी कर रहे हैं, मटेरियल बजट, लेबर बजट, अदर एक्सपेंस बजट, कैश बजट, तो इसे हम लोग बोलेंगे हम लोग मल्टीपल बजट्स अप्लाई कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। और ये सारा बजट जब प्रिपेयर हो जाता है, जितने सारे बजट का हम लोगों को जरूरत है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट। अब हम लोग एक एक बजट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या होता है, किस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक बार बजट के बारे में लिख लो। बजट इज ए प्लान expressed in monetary terms thus here objectives and targets are laid in quantitative terms. एग्जाम्पल एक समझने के लिए लिख लो। इफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is to increase its profit और आउटपुट। प्रॉफिट यानी मॉनिटरी टर्म में हो गया, और कोई सोच रहा है मुझे मेरा आउटपुट इंक्रीज करना है यानी क्वांटिटेटिव टर्म में हो गया, बट इट इज नॉट बजट। इफ द फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक a target for sales of rupees 1000 crore, then it is a budget। तो इसे हम लोग बजट बोल सकते हैं। एक्चुअली इसे यहाँ पर एक जोड़ सकते हो, इन शॉर्ट इट इज ए फाइनेंशियल प्लान। इट इज ए फाइनेंशियल प्लान। ये एक फाइनेंशियल प्लान है, एक ऐसा प्लान है जहां पर हम लोग मतलब इसका फाइनेंशियल वैल्यू भी बताएंगे, तभी इसे हम लोग बजट बोल सकते हैं, अदरवाइज इसे हम लोग बजट नहीं बोल सकते। और हम लोगों को कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सेल्स टारगेट
फिक्स करना चाहिए, हम लोग इतना यूनिट या फिर इतने वैल्यू का सेल करना चाहते हैं, उसी बेसिस पे बाकी सारा काम स्टार्ट हो सकता है। तो फर्स्ट बजट हम लोग का सेल्स बजट होना चाहिए। तो लिखो सेल्स बजट, इट इज द फर्स्ट बजट prepared by any organization. All other budgets can be derived from sales budget directly or indirectly। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल्स बजट से ही सारा बजट डिराइव होता है, बट नो फिक्स्ड फॉर्मूला is available for sales budget। कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं होता, ये एस्टिमेशन होता है अपने अपने फर्म का, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन लोगों को क्या सेल करना चाहिए। और ये फॉर्मूला तो नहीं है। अब एस्टिमेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा उसका एक छोटा मोटा लिस्ट बना देते हैं। ये देखो, सर्वे ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पर लिख लो सेल्स बजट बेस्ड ऑन, सेल्स बजट बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस होता है? सर्वे ऑफ कंज्यूमर। तुम जिस चीज का सेल करना चाह रहे हो, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर से उसका एक सर्वे करवा सकते हैं, सबसे पूछ के कि एक सर्वे कर ले कि ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या डिमांड है, तो हम लोग उस हिसाब से अपना सेल टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं। डीलर सर्वे, कंज्यूमर से तो करेंगे डायरेक्टली, डीलर लोगों से भी कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है कौन सा नहीं। या फिर सेल्समैन भी बता देते हैं कि कौन सा चीज ज्यादा बिक रहा है और कौन सा नहीं बिक रहा है, कितने क्वांटिटी में बिक रहा है, तो उन लोगों से भी हम लोग ओपिनियन ले सकते हैं। या फिर मार्केट ट्रेंड, मार्केट में क्या उस चीज का ट्रेंड है जो हम लोग सेल करना चाहते हैं, क्या उसका ट्रेंड है, कितना ज्यादा है या कितना कम है या फिर कितना अप एंड डाउन है। उसके बाद गवर्नमेंट रिपोर्ट रिगार्डिंग जीडीपी एंड नेशनल एक्सपेंडिचर। जीडीपी और नेशनल एक्सपेंडिचर जो होता है इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग अपना सेल्स बजट जो है वो चेक करेंगे। क्योंकि कभी कभी जो पेट्रोल डीजल का जो दाम कम ज्यादा हो जाता है उसके ऊपर डिपेंड करके गाड़ी कंपनी लोग क्या करती है, पेट्रोल या फिर डीजल का प्रोडक्शन, मतलब पेट्रोल या डीजल वाला गाड़ी कौन सा ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए उसका डिसीजन ले पाती है, क्योंकि पब्लिक भी उसी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस मतलब पास्ट रिकॉर्ड से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में जो ट्रेंड एनालिसिस होता है उसमें बहुत साल, 10 साल 20 साल का पुराना जो ट्रेंड रहता है उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। एक रिग्रेशन एनालिसिस भी होता है, ये भी स्टैटिस्टिकल टूल्स है। ये भी हेल्प करते हैं हम लोग को ये जानने के लिए कि हम लोग का सेल्स टारगेट जो है वो कितना होना चाहिए। और इसके अलावा इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, ये सारा ही मैथमेटिकल टर्म है, तो ये सब यूज किया जाता है। कुछ टेक्निकल लोगों का काम होता है, कुछ ये सर्वे वगैरह जो सेल्समैन वगैरह करते हैं, सर्वे करते हैं, डीलर सर्वे, कंज्यूमर सर्वे, सेल्समैन का ओपिनियन, मार्केट ट्रेंड, इसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेल्प करता है। ये जो है ये सब मतलब टेक्निकल स्टाफ्स ये सब काम कर सकते हैं। इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, इससे हम लोग अपना सेल का जो फोरकास्ट है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
और जैसे ही सेल्स बजट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम लोग को ये पता चल जाएगा कि उतना सेल करने के लिए कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये हो गया। तो प्रोडक्शन बजट बता दे थोड़ा सा। Yes, ma'am. अच्छा, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट मतलब हम लोग को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो कितना प्रोडक्शन करना चाहिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग का एक टारगेट रहता है कि कुछ थोड़ा हम लोग के पास रह जाना चाहिए ताकि कोई आए तो सैंपल दिखा दे, या फिर शोरूम में उसे रखने के लिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का क्या होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में पहले कुछ रखने का हम लोग सोच सकते हैं कि जो प्रोडक्शन करेंगे वो सारा सेल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में रख देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए भी प्रोडक्शन करना चाहिए, प्लस हम लोग सेल के लिए तो प्रोडक्शन कर ही रहे, तो कुछ हम लोग को बेच देना है, मतलब मैक्सिमम ही बेच देंगे लेकिन थोड़ा बहुत क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे ताकि वो एज ए सैंपल या फिर एज ए एडवर्टाइजमेंट के लिए काम में आ जाए। लेस करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन नहीं है, ऐसा प्रोडक्शन अगर हम लोग फ्यूचर में भी कर चुके हैं और उसका रिगार्डिंग गुड्स हमारे पास है तो उतना प्रोडक्शन नहीं करेंगे। प्रोडक्शन मान लो मुझे 1000 यूनिट करना है, और इसका मतलब नहीं, पहले मान लो मुझे क्लोजिंग स्टॉक में 500 यूनिट रखना है और मुझे सेल करना है 1500। ठीक है, तो 500 प्लस 1500 मुझे 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन मेरे पास पहले से ही 1000 ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट है, सेम यही वाला प्रोडक्ट है, तो मुझे प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, 1000 यूनिट। इस तरह से मुझे सोचना पड़ेगा। जब भी प्रोडक्शन बजट आएगा तुम लोग को इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि तुम लोग को कितना अपने पास रखना है और कितना सेल करना है। तो ये टोटल तुम लोग का प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन अगर पहले से ही 1000 यूनिट है तो वो क्यों प्रोडक्शन करें, वो माइनस कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 1000। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखो वंस सेल्स बजट has been laid, an organization can plan production targets. And the above formula can be applied to get production budget. प्रोडक्शन कितना, प्रोडक्शन बजट मतलब एक्चुअली ये लेकिन क्वांटिटी में ही आता है। नॉर्मली प्रोडक्शन मतलब यूनिटी हो जाता है, फिर अगर हम लोग का ये कॉस्ट दे देगा तो हम लोग उसे इनटू करके उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन बजट के बाद जैसे ही प्रोडक्शन हम लोग सोच लेंगे वैसे ही हम लोग को ये पता करना पड़ेगा हम लोग का मेटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या है, कि इतना प्रोडक्शन करने के लिए कितना मेटेरियल हम लोग को रिक्वायर है। तो इसके बाद हम लोग बना सकते हैं मेटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। आफ्टर प्रोडक्शन बजट, material requirement budget, which is also known as material consumption budget. Consumption or usage budget is prepared. मेटेरियल कंजम्पशन किस तरह से कैलकुलेट करें, सेम ही होगा। ये देखो कितना हम लोग को प्रोडक्शन करना है इनटू कंजम्पशन, कितना प्रोडक्शन करना है इनटू कंजम्पशन पर यूनिट
ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अगर दिया हुआ है, प्रोडक्शन इनटू कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ, प्रोडक्शन यूनिट लिख सकते हो, कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, इनटू कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लो एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल चाहिए और हम लोगों को 10,000 प्रोडक्शन करना है, 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करना है और एक यूनिट के लिए 2 किलो मटेरियल चाहिए, तो 10,000 यूनिट के लिए कितना चाहिए, 20,000 किलो मटेरियल चाहिए। तो ये डिसाइड हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग मार्केट में जाके क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो इसके बाद आएगा मटेरियल परचेज बजट। इसके बाद आएगा मटेरियल परचेज बजट। Once consumption can be decided, organization can lay down its purchase budget. और प्लान, और इसे कैसे करके कैलकुलेट करना है, मटेरियल परचेज। इसको भी हम लोग यूनिट और प्राइस दोनों में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम लोग यूनिट देख लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में कितना रखना है ताकि प्रोडक्शन सही तरह से चलता रहे, कितना कंजम्पशन हो जाएगा अगर ओपनिंग में कुछ है तो, लेस ओपनिंग स्टॉक, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, यूनिट। अब जैसे ही ये पता चल गया कितना परचेज करेंगे, अब वैल्यू में कैसे निकालेंगे, मटेरियल परचेज इन रुपीज, रुपीज या फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना परचेस करेंगे वो तो यहीं पर डिसाइड कर लेंगे, मटेरियल परचेस डिसाइड हो चुका है, इनटू जो मार्केट में रेट चल रहा है, कॉस्ट पर यूनिट, जो मार्केट रेट चल रहा है कॉस्ट पर यूनिट, इससे हम लोग निकाल लेंगे मटेरियल परचेस बजट। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, इलास्ट्रेशन 1 है, इसमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट प्रिपेयर करने बोला है। ABCDEF 6 मेटेरियल्स हैं, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 1 जनवरी, यानी ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 31 जनवरी, ये यानी ये कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। एस्टिमेटेड कंजम्पशन मतलब इतना यूनिट यूज, इतना यूनिट यूज होने वाला है, और स्टैंडर्ड प्राइस बता दिया है। तो हम लोग कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं, मटेरियल परचेज बजट। तो परचेज में अभी हम लोगों ने 2 चीज सीखा, एक यूनिट में हो सकता है कि कितना क्वांटिटी में हम लोग को परचेज करना है, और एक क्या होता है, कितना रुपीस बन जाएगा, मतलब कितना खर्चा हो जाएगा अगर हम लोग इतने क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो इसका कैलकुलेशन तुम लोग मुझे कोई भी एक बता दो, ABCD किसी भी एक का क्वांटिटी, परचेज का क्वांटिटी और परचेज का प्राइस बता दो, फिर हम बता देते हैं किस तरह से फॉर्मेट हम लोग को यूज करना है। तो बताओ, ए जो मटेरियल है इसे कितना यूनिट खरीदना पड़ेगा, बताओ। अभी तो मैंने बताया, खरीदने जब जाएंगे 2 चीज ध्यान में रखेंगे, कितना प्रोडक्शन में यूज करेंगे, कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना है ताकि प्रोडक्शन स्मूथली होते जाए, कोई भी प्रोडक्शन में रुकावट ना आए। और लास्ट ये देखना है हम लोगों को कि अगर पहले से कुछ है ओपनिंग स्टॉक में तो उतना कम लाएंगे मार्केट से। तो बताओ क्या होगा, ए का जो परचेज यूनिट है वो कितना होगा, सबका परचेज यूनिट फटाफट कैलकुलेट। हाँ, 1,24,000 1,24,000 होगा, क्योंकि देखो
क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को 20,000 स्टॉक में रखना है, कंजम्पशन करना है 1,20,000 का, और हम लोगों का एस्टिमेटेड जो स्टॉक है ओपनिंग वो 16,000 पहले से ही है, ठीक है। ये सारा एस्टिमेट होता है क्योंकि बजट मैंने बोला कुछ रियल के साथ नहीं टैली होता है, इसका हम लोग एक प्रोजेक्शन करते हैं, उस बेसिस पे वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो 1,24,000 यूनिट हम लोगों को खरीदना पड़ेगा अगर हम लोग को अपना सेल्स बजट तक अचीव करना है, क्योंकि ये परचेज बजट तो सेल्स बनने के बाद ही बना होगा। और प्राइस कितना है 25 पैसा, तो इंटू 0.25 करके बताओ कितना होता है। 31,000। 31,000। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, यही ऐसा ही कॉलम बनाएंगे, ये लो टाइप ए, इसी के नीचे नीचे लिखते हैं एक्यूरेटली हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, वहां फॉर्मूला में भी लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले लिखा है हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक होता है 31 जैन वाला। तो कितना कितना है सबका लिखो, 20,000, 8,000, 28,000, 4,000, 16,000, 32,000। फिर क्या ऐड करेंगे, कितना कंजम्पशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड तो लिखा हुआ है, ये डॉट डॉट दे देते हैं, कंजम्पशन 1,20,000, 44,000, 1,32,000, 36,000, 88,000, 1,72,000। अच्छा ये हो गया। और लेस कर चाहो तो ये ऐड करके भी लेस कर सकते हो, इसे ऐड करके नेक्स्ट लाइन में भी लेस कर सकते हो। हम यहाँ पर जगह नहीं होगा, डायरेक्टली लेस करते हैं। एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 16,000, 6,000, 24,000, 2,000, 14,000 और 28,000। माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा क्या, कितना खरीदना है। एस्टिमेटेड परचेज इन यूनिट, एस्टिमेटेड परचेज ब्रैकेट में हो जाएगा इन यूनिट। तो बताओ कितना होगा, पहला वाला का आंसर 1,24,000। सेकेंड, ये सब नेगेटिव है, माइनस लिखा है मैंने। सेकेंड आ रहा है 46,000, उसके बाद 1,36,000, नेक्स्ट 38,000, 90,000 और 1,76,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, प्राइस दिया हुआ है तो प्राइस वाला भी कैलकुलेट करेंगे कि एस्टिमेटेड प्राइस बजट क्या होगा। अच्छा तो कैसे लिखेंगे, ये एस्टिमेटेड प्राइस पर यूनिट जो लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड परचेज इन यूनिट जो लिखा हुआ है उसके नीचे लिखो स्टैंडर्ड प्राइस, यही वाला कॉलम लिख दो। स्टैंडर्ड प्राइस 25 पैसा मतलब 0.25, 0.05, 0.15, 0.10, 0.20, 0.30, यही वाला लाइन को यहाँ पर लिख दो, यही वाला लाइन को यहाँ पर लिख दो। एस्टिमेटेड परचेज पर यूनिट के नीचे ये वाला लाइन लिख दो स्टैंडर्ड प्राइस बोल के जो है, फिर उसके नीचे लिखो एस्टिमेटेड परचेज और इनटू करके वैल्यू बताओ। 1,24,000 यूनिट खरीदना पड़ेगा 0.25 करके, 46,000 यूनिट खरीदना पड़ेगा 0.05, 5 पैसा मतलब 0.05, अगर कोई इंटू 0.5 करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सारा आंसर कैलकुलेट करो, हम ये कॉलम के ऊपर ऊपर आंसर लिख देते हैं। समझ गए हो किस तरह से करना है। हेलो हेलो हाँ, ये देखो आंसर टैली करो, इतना इतना आएगा सिंपल। ये जो यूनिट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, इसके नीचे तुम लोग को प्रेजेंटेशन के लिए स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट वाला कॉलम लिखना है, ये जो कॉलम है इसके नीचे लिखना है, फिर लिखना है एस्टिमेटेड परचेज इन रुपीज और ये आंसर्स आएंगे, ये देख लो जो लिखा है मैंने।
18,000 52,800। ডিএস টা 23,000 আসলো না কোনটা? ডি ডিএস? হ্যাঁ ডি এর তো 10 পয়সা করে, তাহলে 38,000 ইন্টু 0.1 তো 10 পয়সা। 5 পয়সা। না না, ওটা তো বি এরটা 5 পয়সা মানে 0.0। হ্যাঁ বিএস টাই বলছি। সেকেন্ড সেকেন্ডটা 2300 তো বলছে। 46,000 ইন্টু 0.05 2300। এইটা 5 পয়সা না, তাহলে 0.05 তো। হচ্ছে না? 46,000 ইন্টু 0.05, ওটাই আমি বললাম। এটা যদি 5 করে দাও ভুল হয়ে যাবে, এটা আমি এই জন্য বললাম। 46,000 ইন্টু তুমি 5 করেছো বোধহয়, হ্যাঁ ওই জন্য 1000 আসছে। 5 পয়সা, ওটা 50 পয়সা হয়ে যাবে। যদি 0.5 করো তাহলে 50 পয়সা হয়ে যাবে। तो समझ में आया किस तरह से हम लोग को बजट करना है। बजट का कोई रूल्स नहीं है, इसका प्रेजेंटेशन ही मेन है। बस हम लोग को प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है कि कितने अच्छे तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन करें। अगर तुम लोग कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बजट प्रिपेयर करोगे, ताकि उसे इजीली समझ में आ जाए कि क्या टारगेट है, उस बेसिस पे क्या परचेस मतलब क्या बजट बना है। तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग बजट बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रखा जाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बजट बनाता है, परचेज डिपार्टमेंट तो परचेज बजट बनाता है। इसी तरह से सबको अलग अलग बजट बनाता है, लेकिन मेन जो है वो सेल्स है। पहले सेल्स टारगेट बताना पड़ेगा, चाहे क्वांटिटी में बता दो चाहे वॉल्यूम में बता दो, और उसके हिसाब से ही बाकी बजट लाइन बाय लाइन प्रिपेयर होते जाते हैं। तो जब हम लोग एक साथ बहुत सारा बजट करते हैं, मल्टीपल पूरा बजट बन जाता है, तो मास्टर। अच्छा हाँ, जो खर्चा मैंने बताया था मटेरियल लेबर ओवरहेड, अब ये सब जो बजट बनता है वो फिक्स्ड बजट होता है, एक वेरिएबल बजट होता है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल में नॉर्मली कोई फर्क नहीं होता है। फिक्स्ड बजट मतलब कोई भी वन लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हम लोग जब अपना टारगेट बना रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बजट। लेकिन फ्लेक्सिबल कब बनेगा? इस फिक्स्ड से ही फ्लेक्सिबल बन जाता है, फिक्स्ड बजट से ही फ्लेक्सिबल बन जाता है। क्योंकि देखो, सपोज मेरा दो बजट है, किसी भी बजट का दो पार्ट हो सकता है, एक फिक्स्ड और एक हो सकता है फ्लेक्सिबल। फिक्स मतलब जब हम लोग एक ही टारगेट बता रहे, जैसे मान लो एक्टिविटी लेवल बता रहे 25% एक्टिविटी लेवल, या फिर मान लो 25,000 यूनिट एक्टिविटी लेवल के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये फिक्स्ड बजट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल क्या होगा? हम लोग 25 भी ले रहे हैं और 30 भी ले रहे हैं। सपोज 30 भी ले रहे हैं, इधर लिख देते 20 और इधर लिख देते 30, तो यही बन जाएगा फिर फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल मतलब 25% हमारा टारगेट था फिक्स्ड, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अगर उससे कम हुआ तो क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। जब हम लोग मोर देन वन एक्टिविटी लेवल के लिए काम करेंगे, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं होता है। फ्लेक्सिबल और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोर देन वन एक्टिविटी लेवल पे काम करते हैं फ्लेक्सिबल पे, जबकि फिक्स्ड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी लेवल पे ही काम किया जाता है, दैट इज फिक्स्ड बजट होता है। तो ये सब मतलब तुम लोग का एमसीक्यूज वगैरह रहता है, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्या बजट होता है। ये वाला हो गया। हाँ मैम हो गया। अच्छा, तो इलास्ट्रेशन 1 मैंने करवा दिया। ये जो है ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे तुम लोगों से। ये इलास्ट्रेशन 2 मतलब 1, और यहाँ पर है 3 मतलब 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, यानी 4 क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग का होमवर्क रहेगा। लेकिन मैंने जैसा क्वेश्चन करवाया इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, तो तुम लोग ट्राई करोगे इतना, मतलब वो जैसे एकदम सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था तो हो गया। इसमें कुछ वैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कुछ रेशियोज वगैरह है, तो ये पढ़ के तुम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है। लेकिन बाकी है वैसा ही, कहीं पर तुम लोग को प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करना है, कहीं पर
परचेज बजट कैलकुलेट करना है, तो प्रोसेस जो है वो सारा सेम ही रहेगा, लेकिन एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशंस भी है इसके साथ, जिसमें तो इलास्ट्रेशन 2 और 1 इसका आंसर भी दिया हुआ है। अच्छा 1 का दिया हुआ नहीं है, 2 का दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग ट्राई करोगे, हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बजट को ही कंटिन्यू करेंगे।